To know more about option trading, subscribe to Option Trader. नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का दिन कैसा रहा? मार्केट को देख के लगता है कि आप लोगों ने आज अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मॉर्निंग में जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शन किया था मार्केट उसी हिसाब में चला। आप देखिए, जब हमने 8:15 बजे आपको प्री ओपन मार्केट एनालिसिस दिया था ऑप्शन चेन का, तो हमने आपसे बताया था कि निफ्टी में 20,100 स्ट्राइक प्राइस एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, जबकि हमें वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट जो है 20,500 और 20,000 इन तीन जगह हमें लग रहा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनमें से किसी भी लेवल पे बनेगा। कॉल ऑप्शन की एक्टिविटी को यदि हम देखें, जो डेटा अवेलेबल था हमारे पास में, maximum call writing was observed at 20,600 strike price, and maximum call unwinding occurred at strike price of 20,000 strike price. Support side की यदि conditions को देखें तो maximum open interest number of outstanding contract for put option was found at 19,900 strike price, suggesting it could serve as a significant support level for the Nifty. The maximum put writing was seen at 19,600 strike price. There was put unwinding at 19,500 strike price, and the conclusion of the data, what we discussed, was that the Nifty index may face resistance as 20,100 strike price, while 19,900 may be an important support level, because there was notable call writing at 20,600 strike price, and the call unwinding at 20,000 strike price indicate potential resistance and a reduction in bullish sentiment. On the put side, significant open interest at 19,900 strike against 19,900 strike suggests it could act as a strong support level with notable put writing at the 19,600 strike price and the put unwinding at the 19,500 strike price. These option data can provide an insight into the market sentiment and potential Nifty index level. So अर्ली इन द मॉर्निंग ये क्लियर था कि मार्केट 20,100 और 19,900, ये मार्केट खुलने से पहले हमें ये अंदाजा लग रहा था कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। तभी हमने आपसे ये कहा था कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए मॉर्निंग में जब 9:15 पे मार्केट खुलेगा तो उससे आधा एक घंटा मार्केट को टाइम दीजिएगा, और जब मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद में अपने लेवल को डिसाइड कीजिएगा। तो आप देखिए, जब मार्केट खुला 10:45 के आसपास जब हमने मार्केट को देखा तो मार्केट में हमें जो सिनेरियो दिखाई दिया उसमें बोथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वर एट 20,000. Resistance was strong. It was of both volume and open interest at 20,000. OI was looking weak toward top at 20,100, and highest change in open interest in call side is at 20,000. So it was pretty clear that 20,000 will work as a strong 20,100 will work and strong resistance. And if we look at the support side, again we were finding that although highest OI was at 19,900, which was looking weak toward top at 20,000, and highest OI change in put side was at 20,000 strike price. Because both resistance and support were at the same strike price, so market was supposed to be range bound.
and there was the possibility of opportunity from both extension of support and extension of resistance. And when we was observing the data at 10:45, at that time extension of resistance was appearing 20,030 and extension of support was 19,965, and on the basis of data set available, the probable day high and low value as per the data available, it was appearing that as per the data set available at 10:45, possible day high could be 20,057 and possible day low जो दिन का न्यूनतम स्तर था वो 19,922 दिखाई दे रहा था। इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस साइड जो देखने के लिए था, जिसपे हमें वॉल्यूम में लग रहा था कि वहां पे शायद वॉल्यूम लेटर पार्ट ऑफ द डे कंसंट्रेट हो जाए। इन रेजिस्टेंस साइड 20,000, 20,050 और 20,100 ये तीन स्ट्राइक प्राइस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे और दिन में मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले थे यदि मार्केट का मूड पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था। अब यदि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में जाना था, सपोज मार्केट अपने डाउनवर्ड साइड में जाना था, तो हमें यहाँ पे दो ही स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही थी जो कि वर्थ कंसिडरिंग थी, 20,000, 19,500 और 19,000 पे, तो 19,900 पे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो ये एक सेटअप हमें दिखाई दे रहा था। एंड जब हम लोगों ने ओआई चेंज को देखा तो हमें ये लगा कि मार्केट अपने प्रोबेबल डे लो को टच नहीं करेगा। मार्केट को हमने, जब मार्केट खुला, मार्केट को स्टडी किया और ये देखा कि मार्केट खुलते ही उसने एक बड़ी बियरिश कैंडल बनाई। जो सेकंड कैंडल बनी वो ग्रीन रीजन में थी, एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद में आप देखिए रेड कैंडल बनी। मॉर्निंग में मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। इसलिए हमने सजेस्ट किया कि मार्केट को सेटल होने दीजिए, मार्केट सेटल हो जाएगा तब आप अपने लेवल को डिसाइड करें। मार्केट सेटलमेंट तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे करीब ये लगने लगा कि मार्केट अब शायद पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे। हालांकि इसका इंडिकेशन तो बहुत पहले 9:40 पे लग गया था कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। रिकन्फर्मेशन 10:20 पे मिला एंड फ्रॉम 10:45 ऑनवर्ड मार्केट ने एक बड़ी स्पीड से आगे बढ़ा और आप ये देखिए इसके बाद में मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्केट यहां से चला, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचा। तो जो हम ट्रेड कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का ट्रेड, आज मार्केट में वो ट्रेड हमें यहां पर देखने को मिला। इसके बाद में आप देखिए एक सिचुएशन यह आया कि दिन में 12 साढ़े 12 बजे करीब जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 20,100 पे शिफ्ट हो गया और जब हमारा रेजिस्टेंस 20,100 पे शिफ्ट हो गया तो मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हो गया। सपोर्ट में क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आया था तो सपोर्ट वहां की जो पोजीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को छोड़ के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय हमारा रेजिस्टेंस जो था वो 20,100 पे पहुंच गया था और जब हमने वैल्यू को निकालने की कोशिश की तो वो वैल्यूज हमारी जो प्रोबेबल डे हाई की जो वैल्यूज आ रही थी वो 20,117 की आ रही थी
और यदि हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ये 20,022 का दिखाई दे रहा था। तो आप ये देखिए कि यहां से जो मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ 10:40 से उसने अपना जो मोमेंटम था वो पूरे दिन बरकरार रखा। मार्केट डे हाई के करीब पहुंचा। डे हाई की वैल्यू आप देखें कि मार्केट ने जो मैक्सिमम डे हाई लगाया, जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि 20,117 के करीब पॉसिबल डे हाई होगा, लेकिन मार्केट उससे पहले ही 20,098 से रिवर्स हो गया। आप देखें मार्केट ने पूरा ये 20,093 से मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया। 96, 98, 93 कैंडल वाज वेरी प्रोमिनेंट, जिसने बताया कि नहीं अब मार्केट को नीचे ही जाना है। और वहां से आप ये देखिए मार्केट जो नीचे गया वो 20,054 तक नीचे गया। 20,054 तक मार्केट नीचे गया और बाद में 62 के आसपास जाके ये बंद हो गया। तो आप देखिए पूरे के पूरे समय में मार्केट ने यदि मॉर्निंग आवर्स का मॉर्निंग के 1 घंटे का ट्रेड आप निकाल दें तो आप देखेंगे कि पूरे दिन मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में ही रहा। और दूसरी बात यह है कि मार्केट को यदि आप देखें तो 20,050 के डायवर्जन पर मार्केट बंद हुआ। सुबह जो मार्केट 20,000 के रेजिस्टेंस पे खुला था, शाम आते आते जब मार्केट क्लोज हुआ 20,050 के डायवर्जन पर जाकर मार्केट क्लोज हुआ है। इसका मतलब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट अभी भी बरकरार है। यदि हम डेटा सेट को देखें तो डेटा सेट भी हमें यही बता रहा है कि कल भी मार्केट बुलिश रह सकता है, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी, शाम होते होते जो सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो 19,900 पे इस ट्रेंड में होने लगा। बीच में वो शिफ्ट हो गया था 20,000 पे, लेकिन वहां से फिर वो वापस 19,900 पे चला गया। तकरीबन 2:45-3 बजे के आसपास ये इंसिडेंस हुआ। और आप ये देखिए 2:45 बजे के आसपास से मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट आना शुरू हुआ, मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ। तो इस तरीके से आप देखें किस तरीके से हमने जो प्रेडिक्शन किया, हम लोगों ने जो एस्टिमेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन डेटा, वो किस तरीके से मार्केट में ऑनर हुए। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा एनालिसिस करने के बाद वो ये होता है कि हमें ये देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या बन रहा है। मार्केट जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने का अपना प्लान बना रहा है, और ये हमें इंडिकेशन होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख के। तो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि आज मार्केट बुलिश होगा, यदि खुला है तो बुलिश होगा या बेयरिश होगा। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे आप जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसको डेटा को एनालाइज करें और ये पता लगाने की मार्केट कहां तक जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड नाइट।